Hello बच्चों, hi everyone, welcome to the class. Welcome to NCERT Kaksha, an initiative of Arpita Sharma classes, and we have started with class 6th Geography NCERT. Class 6th की Geography हमने अभी start की है, first chapter हमने cover किया है. अब हम start करने वाले हैं second chapter. Total there are 8 chapters that we need to cover from this Geography NCERT of class 6th. We have completed first chapter. This is the second chapter that we are going to focus on. Then हमारे पास बचेंगे 6 chapters. फटाफट से एक हफ्ते के अंदर हम NCERT अपनी 6th की geography की cover करने वाले हैं. The PDF of these lectures will be available on my Telegram channel, Simplifying UPSC with Ease. The link is given below in the description box. टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ठीक है. वहां से आप लिंक को डाउनलोड कर सकते हो, आप क्लिक कर सकते हो, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल के थ्रू. Okay, so let's start with this class, a very wonderful class that we have started, the very wonderful initiative that we have started. Even if you are in class 6th, or if you are preparing for any competitive exam, government exam, you can follow this lecture. It's going to be extremely helpful for all of you. Let's start on this positive note. Start करते हैं अपना आज की class. So the second chapter that we are going to start with is globe, latitudes and longitudes. तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का कॉन्सेप्ट समझना ज्योग्राफी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड and longitude. Before understanding this, you cannot, point out which place is located where on the globe or on the map. That is why understanding the concept of latitude and longitude is very important. So let's start. Our planet Earth is not a sphere, as we all know. हम लोगों को पता है हमारा जो planet है Earth, ये sphere नहीं है. Last class में we studied it's a geoid. क्या है ये? Geoid है. In the last class we studied ना, it is not a sphere, it's a geoid. So it's slightly flattened at the north. North की तरफ आप देखोगे, देखो flat है ना थोड़ा सा slightly, ठीक है. So it is slightly flattened at the north and the south poles, and it has a small bulge in the center. या center में आप देखोगे एक small सा bulge आ जाता है, उभरापना आ जाता है, ठीक है. तो that is why it is known as a geoid. It is not completely circle, ठीक है, completely circle भी नहीं है, ठीक है. यहाँ round नहीं है edges, थोड़ा सा flat है यहाँ पर, ठीक है. और यहाँ पर सेंटर में इसका बल्ज आ जाता है. दैट इज वाई इट्स अ जियोइड, इसीलिए इसको एक जियोइड माना जाता है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. सो व्हेन वी लुक एट अ ग्लोब, जब हम एक ग्लोब की तरफ देखते हैं, इट्स अ ट्रू मॉडल, और यू कैन से अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव, और अ ट्रू फॉर्म और मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ. नाउ द क्वेश्चन कम्स, हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन अर्थ. अब अर्थ पे एक प्लेस, या चलो अर्थ को छोड़ो, ग्लोब पर ही एक प्लेस को कैसे लोकेट किया जाए. यू विल नोटिस दैट नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर, ठीक है. इस तरीके से एक नीडल फिक्स की जाती है, एंड इट इज नोन एज एक्सिस. इसको हम बोलते हैं एक्सिस. यहाँ पर आप देखोगे ना, ग्लोब कुछ ऐसा होता है, ठीक है, इस तरीके से बना होता है, ठीक है. तो ये जो नीडल फिक्स की जाती है, इसको हम एक्सिस बोलते हैं. दिस इज नोन एज एक्सिस. एंड द 2 points in the globe through which the needle passes, this point and over here this point, these are known as poles. ये 2 poles होते हैं, north pole and we have the south pole. ऊपर का हिस्सा north, नीचे का south. So the globe can be moved around using this needle. ये needle use करके आप round rotate कर सकते हो globe को, ठीक है, from east to west, from west to east. But remember, there is a major difference. What is the difference? The real earth has no needle. Only this needle is attached to a globe. ये needle तो भैया हमने globe में ही attach किया है ना, real earth में तो ऐसा कोई needle नहीं है, ठीक है. So that is why the axis is considered to be an imaginary line. इसीलिए एक्सिस को अर्थ पे हम एक इमेजिनरी लाइन बोलते हैं. बोलते हैं एक्सिस के मदद से अर्थ ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट जिस भी पोजीशन में, डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है. बिकॉज ऑफ द एक्सिस इट मूव्स अराउंड द एक्सिस व्हिच इज एन इमेजिनरी लाइन. ओके, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है ना. नाउ देयर इज अनदर इमेजिनरी लाइन व्हिच इज रनिंग इन बिटवीन. एक और इमेजिनरी लाइन है जो कि बीच में रन करती है, ट्रैवल करती है ग्लोब के, व्हिच इज नोन एज इक्वेटर. ये जो रेडिश लाइन आप देख रहे हो, ये इक्वेटर है, ठीक है. एंड दिस लाइन इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 parts. First is the north part, second is the south part, ठीक है. Northern half is known as the northern hemisphere. इस portion को हम बोलते हैं northern hemisphere. This portion is known as the southern hemisphere.
पॉइंट इज क्लियर. एंड दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, यानी कि दोनों का ही अगर आप पेरीमीटर देखोगे, ठीक है, वो इक्वल है. दीज आर इक्वल हाफ्स. Therefore, equator is an imaginary circular line. It is very important reference point to locate places on the earth in the northern hemisphere and in the southern hemisphere. Because of the help of equator only we can identify the place in the north and identify the place in the south. And all the parallel circles from the equator, इस तरीके के जो circles है ना, I'll show you through the image. ठीक है, this kind of circle, ये जो parallel circle है, ठीक है, parallel are the lines which do not meet each other, right? These are known as, these are the parallels of, ये जो lines हैं ये हैं parallels of latitudes. These are known as parallels of latitudes and they are measured in degrees. तो ये देखोगे ये जो line जा रही है ये latitude हो जाएगी और इसको डिग्री में measure किया जाता है. ठीक है, it is measured 23 डिग्री, ठीक है, north 23 डिग्री, साउथ, इस तरीके से डिग्री में मेजर किया जाता है. सो लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स. ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो ओवर हियर वी नो दैट एट द इक्वेटर, दैट इज एट द सेंटर, देयर इज 0 डिग्री. फिर ऊपर शुरू होता है 20 डिग्री, देन 40, देन 60, 80, देन नीचे भी 20, 40, 60, 80. So since the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of circle around the earth, it will measure 1/4 of 360 degrees, that is 90 degrees. तो 90 डिग्री जो नॉर्थ होता है, नॉर्थ लैटिट्यूड, इट मार्क्स द नॉर्थ पोल. यहाँ पर इस तरफ 90 डिग्री नॉर्थ. ठीक है, सो दैट इज द नॉर्थ पोल. ठीक है, और वी कैन से द पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड. जो भी पैरेलल्स है ना, ये लाइंस हैं नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ, ये नॉर्थ लैटिट्यूड्स हैं. जो नीचे की तरफ है वो आपकी साउथ लैटिट्यूड्स हो जाएंगी. ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज फॉलोड बाय ईदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ. या तो नॉर्थ लिखेंगे या साउथ लिखेंगे लैटिट्यूड के आगे. सो इट इज जनरली डिपिक्टेड बाय द सिंबल N एंड सिंबल S. For example, Chandrapur in Maharashtra and Belo Horizonte in Brazil, they are located on parallels of about 20 degree latitude. But former is, this Chandrapur is 20 degree north and this place Belo in Brazil is 20 degree south. ठीक है, बस N और S का difference होता है. That is because of the location. Okay. So there are 4 important parallels of latitudes. We have Tropic of Cancer. ये हो गया आपका Tropic of Cancer. ठीक है, then we have Tropic of Capricorn over here, then we have the Arctic Circle over here and we have the Antarctic Circle. These are the latitudes only. देखो अब ये क्या है, latitude ही तो है, but because of the location the name is different. Tropic of Cancer, it is at 23.5 degree north in northern hemisphere, but Tropic of Cancer is in 20.5 degree south, southern hemisphere में है. Arctic Circle, it is at the north of equator and Antarctic Circle is at the south of the equator. Okay, remember, ये याद रहेगा सभी को. And it is 66.5. देखो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं ना, वो तो 90 डिग्रीज पे होते हैं. दिस इज 90 डिग्री साउथ एंड दिस इज 90 डिग्री नॉर्थ. These are 23.5 degree Tropic of Cancer and Capricorn, and Arctic and Antarctic are 66.5. Just the location is different. All right. Now in the globe over here you will see frigid zone, torrid zone, ठीक है, टेम्परेट जोन. ये आपको जोन्स दिख रहे हैं, इनको हम हीट जोन्स बोलते हैं. These are a part of heat zones. Different heat zones हैं, frigid zone है, temperate zone है और torrid zone है. तो देखते हैं ये क्या zones हैं. So there are 3 basic heat zones of Earth: torrid, frigid and temperate. तो यहाँ पर आप देखोगे over here you will see this is a torch light and this is a cardboard. Torch light falling on straight surface is bright and covers a smaller area. मान लीजिए ये sun है. Let us assume this is the sun and this is the earth. Directly center पे सन के रेस जाएंगे तो ये सेंटर वाला, इक्वेटर वाला जो एरिया होगा वो ज्यादा गर्म होगा. समझ आ रही है बात? सो द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स. हर लैटिट्यूड पर, हर पॉइंट पर जो मिड डे सन होता है वो कम से कम साल में एक बार डायरेक्टली हीट अपनी एमिट करता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, राइट? So in between the Tropic of Cancer and in between the Tropic of Capricorn, it is always once in a year it is emitting its light. So this area receives maximum heat and it is known as torrid zone. इसीलिए इस एरिया को हम बोलते हैं torrid zone. I'll show you over here. मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ.
Just give me a second. Over here, this is the torrid zone because the sun is directly emitting its light over here between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होगा, ठीक है, उसे हम टॉरिड जोन में मानेंगे क्योंकि डायरेक्ट हीट यहाँ पर सन की आ रही है, डायरेक्ट रेज ऑफ सन आर फॉलिंग ओवर हियर. ओके, सो दीज आर टॉरिड जोन. देन वी हैव द टेम्परेट जोन. अब देखो टेम्परेट जोन कहाँ पर है, यहाँ पर ये देख लेते हैं. वेयर इज द टेम्परेट जोन ओवर हियर? ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे दिस इज द टेम्परेट जोन. ये साउथ में और ये नॉर्थ में. सो व्हाट आर टेम्परेट जोन्स? The midday sun never shines overhead on any latitude beyond Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. यानी कि यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के परे, यहाँ पर इस एरिया में सन कभी डायरेक्टली सन के रेज एमिट नहीं करता, रिफ्लेक्ट होती है. यहाँ पर थोड़ी सी ही रेज आती है, ज्यादा रेज नहीं आ पाती है. सन तो यहाँ पर है ना, सन इज ओवर हियर एट द सेंटर, सो द रेज आर रिफ्लेक्टेड ओवर हियर. डायरेक्ट रेज आर नॉट गोइंग, रेज आर गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन दिस एरिया. Right, so this area is known as the temperate zone. The sun's rays goes on decreasing towards the poles. ठीक है, so that is why this area is not too warm and not too cold. Then we have the frigid zone. उसके बाद हमारे पास यहाँ आ जाता है frigid zone. ठीक है, so areas lying between Arctic Circle and North Pole. ये जो Arctic Circle है और North Pole है, इसके बीच का जो एरिया है ये हो जाएगा आपका frigid zone में आएगा एरिया. ठीक है, तो here because the sun's rays are always slanting and provide less heat, that is why this is known as frigid zone. That is very cold. ये जो एरिया होता है वो बहुत ही कोल्ड होता है, बहुत ही ठंडा एरिया होता है नॉर्थ पोल में या एग्जैक्ट डाउन साउथ पोल में. ठीक है, तो टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन्स आर क्लियर, वेरी इजी. Now we have understood parallels of latitudes. Now let us understand what are longitudes. To fix the position of a place, it is necessary to know something more than latitude. जरूरी नहीं है सिर्फ latitude को जान लिया तो आप लोकेशन कर सकते हो, पता लगा सकते हो, नहीं. You can see for example that Tonga Islands, which is in the Pacific Ocean, and Mauritius Islands, which is in the Indian Ocean, are situated on the same latitude. So how can you identify the position or location? मॉरिशस आइलैंड और टोंगा आइलैंड्स दोनों ही सेम लैटिट्यूड पर है, 20 डिग्री साउथ पे, तो एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चलेगी? सो टू नो द लोकेशन प्रिसाइसली, एग्जैक्ट लोकेशन, वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस. एक लाइन ऑफ रेफरेंस से कितना ईस्ट या कितना वेस्ट या कितना ईस्ट में ये लोग लोकेटेड हैं, ये पोजिशन आपकी, ये आइलैंड्स लोकेटेड हैं. सो दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंसेज आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम are measured in degrees of longitude. तो ये जो रेफरेंस लाइंस है ना, इसी को हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं. नाउ हियर वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, इन लैटिट्यूड्स वी हैव पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. ठीक है, वी हैव पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड इन लॉन्गिट्यूड वी हैव मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. लॉन्गिट्यूड में हमारे पास मेरिडियन होता है, इस तरीके की लाइन होती है. ठीक है, और लैटिट्यूड में इस तरीके का पैरेलल होता है. पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर आप देखोगे दिस इज द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड. ये है आपका लॉन्गिट्यूड एंड इन सेंटर वी हैव प्राइम मेरिडियन. यहाँ पर हमारे पास इक्वेटर था लैटिट्यूड में, यहाँ पर हमारे पास प्राइम मेरिडियन है. डिफरेंस समझ आ रहा है? लैटिट्यूड में वी हैड इक्वेटर, इन लॉन्गिट्यूड वी हैव प्राइम मेरिडियन. सो अनलाइक द पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, all meridians are of equal length, so it is very difficult to number the meridians. So all countries decided that count should begin from meridian which passes through Greenwich, which are the where the British Royal Observatory is located. यहाँ पर ग्रीनविच है, ये ग्रीनविच से होकर जो लाइन जाती है उसी के बेसिस पे हम बाकी सारे लॉन्गिट्यूड्स को काउंट करेंगे, ये डिसाइड किया गया फाइनली. सो दिस इज नोन एज द प्राइम मेरिडियन whose value is 0 degree longitude and from it we count 180 degree eastward and 180 degree westward. यहाँ पर westward हो जाएगा, यहाँ eastward हो जाएगा और काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी. So the prime meridian and 180 degree meridian divide the earth into two equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. Point clear हो गया? So now you can very easily locate any point on the globe if you know the latitude and the longitude of the place. For example, Dhubri in Assam is situated at 26 degree north latitude and 90 degree east longitude. ठीक है, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? जहां पर ये दो पॉइंट्स कट कर रहे होंगे वहां पर आपका धुबरी प्लेस लोकेटेड होगी. ठीक है, ये इजी हो गया ना, क्या पता लगाना लोकेशन. अब this will be the latitude, the longitude, this will be the latitude. जहां पर 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री
ईस्ट लॉन्गिट्यूड कट करेंगे वहां पर आपकी जगह हो जाएगी डुबरी। तो दिस इज हाउ इन अ ग्रिड फॉर्मेट यू कैन मार्क एनी प्लेस ऑन द ग्लोब। इस तरीके से ग्रिड फॉर्मेट में आप किसी भी जगह को ग्लोब पे मार्क कर सकते हो बहुत ही इजीली। ठीक है, सो दिस वॉज योर क्लास ऑन लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। ये थी आपकी क्लास लॉन्गिट्यूड की और लैटिट्यूड की। सो आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, समझ आई हो, एंड नाउ यू आर प्रिपेयर्ड टू आंसर एनी क्वेश्चन विच कैन बी पॉसिबली फ्रेम्ड ऑन द टॉपिक longitude and latitude or globe. So this was all for today. I hope you enjoyed the session. Do not forget to subscribe to the channel if you haven't yet subscribed, and also press that bell icon to never miss an update in the future.